We are about to start with UV spectroscopy. Some of us might have attended UV spectroscopy. College में हुआ रहेगा semesters में. Some backups might be there. For some of us it might be totally new. But trust me, अगर ये chapter समझता है, if you get the basics of spectroscopy right over here, every further upcoming chapter becomes easy. Let it be NMR, mass, IR, whichever spectroscopy we are going to talk further about. And since the journey is going to be together for all the spectroscopies, I'm sure we will have a good time, provided we understand concepts. If you go to rectify things over here, trust me, we will make a very big mistake. Lifetime फिर ये सब कुछ रटना पड़ेगा. I don't want that to happen. And yes, at the end we'll talk about other things which were in the pipeline step by step. Anyways, everything stays the same. This is Dharmesh Mehta here, this side, meeting you after a long time. Everything will go at the same pace. If at all you feel I'm going too fast, you want me to slow down, let me know. If you think it's too slow, you want me to speed up, let me know. Q&A at the end of the lecture, whatever we finish, we ensure that we revise it before the lecture ends. All clear? Are we good to go? Are we ready? Yes. I hope you have book and pen in place to note down things parallelly. Be ready for Q&A in between. Ensure that you don't rectify things. Keep an eye on things going around. Let's go. When we talk about UV spectroscopy, let's first and foremost get an idea about what are the different type of questions which usually pops up from this chapters. Which reference book are we supposed to refer to? Question paper solve करना है तो क्या theory based questions आने वाले हैं? Is it that UV spectroscopy will have a good amount of weightage? When I say weightage, I mean GPAT में कितना question आएगा, NIPER में कितना आएगा, BITS में कितना आएगा, Manipal में कितना आएगा, or if at all I'm planning to write even ICT M.Tech, then what number of questions we can expect in that particular entrance parallelly. Basically, when we talk about GPAT में इसमें से questions आने चाहिए, but those won't exceed more than 2 to 3 if we are supposed to be specific to UV spectroscopy. When we move from GPAT to NIPER, there is a high possibility that when we talk about UV spectroscopy and NIPER, we might have same number of questions. I repeat, same number of questions, but the areas might just differ out. जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस अराउंड से क्वेश्चन जीपैट नाइपर दोनों में रहने वाले. बट इफ आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, आई होप यू ऑल आर अवेयर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज गॉट सम न्यूमेरिकल्स एज वेल, जिसको भी सेमेस्टर 7 कॉलेज में हो गया रहेगा. आई सपोज यू माइट हैव बीन थ्रू विद this chapter in semester. So there are Woodward Pfizer numericals which are a part of this chapter. To be honest, in the past years, if we go 2-3 years back from now, Woodward Pfizer पे कभी numericals आते नहीं थे. But of lately, since last 2-3 years, they have started asking question on Woodward Pfizer rule as well. Moral of the story, we have to do things from Woodward Pfizer rule as well. We have to work upon MCQs, we have to work upon numericals to ensure that if at all any question pops up, we are able to solve it. Clear till here? Talking about references, there are a lot of books when we talk about analysis and spectroscopy, but talking about UV spectroscopy, it will be more than enough even if you say stick to an Indian author known as Supriya Mahajan. Supriya Mahajan is an Indian author. Finding a soft copy book of this will be very difficult. So if you don't get it, to be honest, even I don't have it, but I have some bits and parts of it. I can check for it, and if I get it, I'll pass it across to you. Clear enough? Clear enough? BL Lambert से भी आएंगे एक बार one by one, step by step. As we proceed further, we'll talk about all the areas from where the questions usually top up. Wire Sharma, Pavya, and all is good. Agreed. They have things in a better way. But to be honest, UV spectroscopy doesn't require Pavya or Wire Sharma or all those stuffs. हम लोग को Pavya NMR के लिए करना. Yes, agreed. But that's what I'm trying to put across. Don't confuse things around what is supposed to be done and what is not supposed to be done. Going in depth is okay, provided questions are going to be from that particular area. So if we talk about pharmaceutical engineering, distillation और crystallization तोड़ मरोड़ के पढ़ के मतलब नहीं है, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन ही आने वाले which will again be superficial. So be clear where you are investing your effort. Clear enough? Are we good to go? Enough of pravachan? Yes. Can we shoot? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Talking about UV थोड़ा वर्ड को ब्रेक करने के इससे स्टार्ट करते हैं. How many of us have heard about the word spectroscopy? Spectroscopy तो सुना होगा. UV spectroscopy might be a different word, but I am sure हम लोग ने spectroscopy as a word तो सुना होगा. कहीं पे probably we might have heard the word spectroscopy. Somewhere we might have probably heard the word even spectrometry.
कभी स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड सुना है? हैज इट हैपेंड दैट वी हैव हर्ड द वर्ड स्पेक्ट्रो, बट यहाँ पे स्कोपी है, वहां पे मेट्री था, सुना है किसी इसमें? So if you are aware, our syllabus basically includes different types of spectroscopy and spectrometry. Okay, spectrophotometry भी था. Our syllabus basically has UV spectroscopy, जो यहाँ पे है, IR spectroscopy, NMR spectroscopy. But when you talk about mass, वो mass में spectrometry बोलता है, वो mass में spectroscopy नहीं बोलता. Why is that so? जब mass spectrometry करेंगे तब बात करेंगे. This is just to put a base to you that there is some difference. That's the reason वो लोग mass को spectrometry बोलते हैं और बाकी सबको spectroscopy बोलते हैं. Playing around words will make it more simpler to understand concept. It's not that कोई तुमको एग्जाम में पूछने वाला है कि spectroscopy कब बोलते हैं और spectrometry कब बोलते हैं. Nothing of that sort. This is just for us to understand when we are supposed to focus, we are supposed to go till what extent to make it happen. Clear enough? Clear enough? Can I start? Finally, yes. Chalo, let's go. Let's talk around some basic terminologies before we take it further to the next level, just to get an idea that how much we are already aware about all these things. When we talk about some basic concepts, let's first start with the word which was right next to it, which is spectroscopy. How many of us have heard about spectroscopy somewhere in our 11th 12th standard as well? कुछ हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस था, फिर वो कुछ तो 4 पाई हम लोग लिखते थे. देयर वाज known as gyromagnetic ratio, EMR region, electromagnetic spectra. You might have heard about parallel lines, perpendicular lines. ये सब terminology सुना रहेगा कहीं ना कहीं पे. I am sure on that. Anyways, we are not going to revive what we did in 11th and 12th. But before we move to the higher part of the chapter, it is just to put a base that when we talk about spectroscopy, spectroscopy is more about our electromagnetic radiations. I repeat the word electromagnetic radiations, which would basically interact with any kind of matter. Matter. Let's talk about humans as matter. Are we matters? Are we matter? Do we occupy some space and all those stuffs in basic definition अपना? How many of us have heard about magnetic resonance imaging? MRI कराया है घर पे किसी ने? कोविड के टाइम पे मैंने 2 बार कराया था, घर वालों ने भी 2 बार कराया था. MRI, we all might have heard about this diagnostic test, right? MRI. Just for information, MRI में जो principle apply होता है ना, any idea what is that? I have said this in the past during some of the other lectures, but any idea? Do we recollect what is MRI actually? MRI में क्या होता है? No one, not a single person. Okay, ठीक है. Basically, MRI involves application of your NMR spectroscopy. MRI का principle is nothing but NMR spectroscopy only. Yes, nuclear magnetic resonance. And ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 टाइप का होता है. वी आर गोइंग टू डू एनएमआर चैप्टर एनीवेज इन अ huge depth. As of now, just for information, nuclear magnetic resonance spectroscopy NMR is basically for protons and it is also for carbon. NMR spectroscopy प्रोटॉन के लिए भी होती है और कार्बन के लिए भी होती है. तो जो प्रोटॉन NMR है, H plus NMR, that's the one which is used for MRI. What could be the reason? प्रोटॉन NMR कैसे MRI के लिए यूज होता है? हमारे बॉडी में प्रोटॉन्स चाहिए ना उसके लिए. So does our body have protons? गौरी, आलिया, वंदिता, आरती, आंचल के अपने बॉडी में प्रोटॉन्स है. 70% वाटर है ना ह्यूमन सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. H2O, राइट डॉली? H2O में H प्लस होता है, प्रोटॉन बनता है. दैट्स द रीजन MRI स्पेक्ट्रोस्कोपी is actually the application of nuclear magnetic resonance. I hope you got the base. Clear enough? On same grounds, when we talk about UV spectroscopy has got nothing with regards to diagnosis in human system, but it is more about analysis. एक टैबलेट बनाया तो टैबलेट में कितना ड्रग है. So when tomorrow you will enter into your masters, you are going to use this spectroscopy 1000% sure, irrespective of whether you're going to cognosy or you're going to pharmaceutics. Any masters you do, except the documentation ones, you will actually come across this instruments. Clear enough? Basically, when we talk about spectroscopy में basically electromagnetic radiation interact होने वाला मैटर के साथ. On same ground, if I talk about wavelength, how do we define wavelength usually? वो याद रहेगा फिजिक्स वाला तो ऐसे ऐसे वेव आता है, किसी को क्रेस्ट बोलते हैं, किसी को ट्रफ बोलते हैं. ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस टू एंड दिस टू? कैन एनीवन टेल मी? ये ऊपर वाला जिसको ए लेबल किया है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं कि ट्रफ बोलते हैं? सुना होगा, पता होगा. Crest. इज एवरीवन क्लियर इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, राइट? So the ones which are popping up, the ones which are on top, they are known as crest, and the one which are on the
इसको crest बोलते हैं. The one which are on the lower end are known as trough. TROUGH. Correct? ऊपर वाला crest है, नीचे वाला trough है. Okay. And when we usually go on to define lambda, LAMBDA, or usually when we go on to define wavelength, we usually define it as the distance between two consecutive crests. So let's say this is crest A and this is crest B. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. कंसेक्यूटिव ऐसा नहीं कि ये क्रेस्ट ए और क्रेस्ट सी के बीच का डिस्टेंस. नो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्ट इज नोन एज वेवलेंथ. सर ये सब क्या चल रहा है? बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट. Connecting things to it would be the one which are more interesting. So stay on the same line so that we can get a clarity about the same. So when you talk about wavelength given by the symbol lambda, it is basically distance between two consecutive crests or troughs. The usual units for this is nanometers. Just to understand how much we are sure about basics, अगर एक wavelength का value मेरे को दिया है that it is 100 nanometer, okay? 100 nanometer is the wavelength of a particular wave. I need to write the answer in terms of Armstrong and I need to write the answer in terms of centimeter. Can you please help me out? Can you please help me out on this? Can you please help me out onto this? बोलो. 100 नैनोमीटर को आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो कितना होगा, और 100 नैनोमीटर्स को अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना होगा? Someone is saying 1000 Armstrong, someone is saying 10 Armstrong. अभी सब लोग 10 पे आ रहे हैं. वोट खेल रहे हो क्या? वोट दो, वोट लो, वोट दो, वोट लो. एक बात बताओ, नैनोमीटर्स इज 100 into 10 raised to minus 9. एम आई करेक्ट? ये बेसिक्स है और ट्रस्ट मी नाइपर में ये लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं. हम लोग अभी जैसे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट एंड ये सब पे जाएंगे, दैट टाइम यू विल रियलाइज ओह इतने इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं क्या, एंड दैट वुड बी द एक्चुअल रिएक्शन. So basically, when I say 100 nanometers, can I write that same thing as 100 into 10 raised to minus 9 meters? लिख सकता हूँ. Are they both one and the same? 100 into 10 raised to minus 9 meters and 100 nanometers is one and the same. I hope everyone agrees with this. Right, Akshata, Ajit, Amisha, Anuradha, Dharini, Gauri, Divisha, am I correct? Right, Diksha? और अगर उसी चीज को मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है, इट इज नॉट सपोज टू चेंज. वो एट द एंड ऑफ द डे 100 नैनोमीटर ही लेना चाहिए. तो मैं आर्मस्ट्रॉन्ग कब लिख सकता हूँ? व्हेन आई मेक इट 10 raised to minus 10. Am I correct? 10 raised to minus 10 meter is nothing but 1 Armstrong. I hope you all are aware about this basic conversion. अगर नहीं पता है तो करो, इसके अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे. Don't take it lightly. 10 raised to minus 10 meters is 1 Armstrong. So if I write 1000 into 10 raised to minus 10, is it same as 100 into 10 raised to minus 9? ये दोनों सेम है, yes or no? I hope everyone gets an idea. Yes or no? Gauri, Anuradha, Disha, Diksha, Gautam, Janvi. I repeat. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. चलो, कभी कभी लगता है इतनी इजी चीज करानी नहीं चाहिए, फिर तुम ऐसी गड़बड़ कर देते हो तो लगता है कराना पड़ेगा. चलो मैं एक बात बताओ, 100 into 10 raised to minus 9 को मैं 10 square into 10 raised to minus 9 लिख सकता हूँ. Can I write it this way? Yes or no? Is even this correct? Can I write 100 as 10 raised to plus 2 into 10 raised to minus 9? I hope everyone agrees till here. Mansi, Mahima, Manisha, Nidhi, Pavitra. On same grounds, जो 1000 into 10 raised to minus 10 है, can I write it 10 raised to plus 3 into 10 raised to minus 10? क्या मैं लिख सकता हूँ ये भी? 10 raised to plus 2 into 10 raised to minus 9 और 10 raised to plus 3 into 10 raised to minus 10. ये दोनों का एट द एंड नेट वैल्यू क्या आने वाला? इज इट गोइंग टू बी 10 raised to minus 7 plus 2 minus 9 is minus 7 plus 3 minus 10 is again going to be minus 7, right, Shrishti? So can I say both of these numbers are actually equal? Correct? Got the logic? Om, Nisha, Omkar. बेसिकली क्वेश्चन इसके अराउंड ही घूमने वाला है कि अगर इसका वैल्यू 100 नैनोमीटर्स है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, उसको सेंटीमीटर में कैसे एक्सप्रेस करोगे. तो अपने को सिर्फ बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए. आई शुड नो दैट 1 मीटर इज 10 raised to minus 9 nanometers. Am I correct? I should know that 1 meter is equal to 10 raised to minus 10 Armstrong. Am I correct? Am I correct? I hope
नेक्स्ट टाइम हम लोग ये गड़बड़ नहीं करेंगे. क्लियर है ना? कैन वी गो फर्दर? अच्छा, कुछ डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो. अगर ये नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझेगा, इसके लिए कुछ रटना मत प्लीज. थ्रू आउट द लेक्चर कभी भी कोई भी लेक्चर में कुछ भी रटना मत. मोमेंट यू स्टार्ट रटोफाइंग थिंग्स इज द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट डिगिंग होल फॉर योरसेल्फ. क्लियर इनफ? अजीत, युक्ता, वंदिता, आर वी गुड टू गो? मधुरा, अंशिका, बेसिक पकड़ के स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी यूजुअली टॉक अबाउट वेवलेंथ, वी ऑल माइट हैव रेड इन आवर 12th स्टैंडर्ड in the chapter of atoms, molecules and nuclei, E is equal to hc by lambda. फिजिक्स में था 13 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी था, नो डाउट अबाउट दैट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट E is equal to hc by lambda, मुझे फॉर्मूला में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे इसके ऊपर से कोई न्यूमेरिकल आने वाला है, बट मुझे इसके अंदर एक रिलेशन मिल रहा है. प्रणव, कैन वी ऑब्जर्व दैट? प्रार्थना, आई एम बेसिकली ऑब्जर्विंग दैट E is directly proportional to Planck's constant. H is Planck's constant. Constant है तो कुछ लेना देना नहीं है अपने को. What is C? Can I say even C is a constant? Can I say even C is a constant? C का constant होता है? Velocity of light. I hope you remember. तो ऊपर का numerator as it is constant है. Let's talk about the denominator. Can I say over here energy is inversely proportional to lambda? E is inversely proportional to lambda. Can I say that? So on simple grounds, what I'm trying to put across is, understand this, ratna mat, please ratna mat. I'm repeating my words. Let's say that I have one lambda 1, which is at a value of 490 nanometers, and I have lambda 2, which is at a value of 820 nanometers. ये दोनों वेवलेंथ में से कौन से वेवलेंथ का एनर्जी ज्यादा रहेगा? लैम्बडा 1 की लैम्बडा 2, ये दोनों वेवलेंथ में से कौन से वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा रहेगी? कौन सा वेव ज्यादा फास्ट भागेगा? एवरीवन सेज लैम्बडा 1. प्रियंका, प्रतीक्षा, पूर्वा, आर दे करेक्ट? एक बेसिक चीज देखा हम लोग ने, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो जब भी वेवलेंथ बढ़ते जाएगा तभी तभी एनर्जी कम होते जाएगा. कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? भूलना मत. दिस इज द नंबर वन थिंग विच वेयर दिस चैप्टर स्टार्ट्स. यही कॉन्सेप्ट पे आगे जाके हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ खेलेंगे. यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे जाके वेव नंबर के साथ भी खेलेंगे. ये नहीं समझा आगे कुछ नहीं समझेगा. एम आई क्लियर ना? Coming back to this, when I'm talking about the basic groundwork that lambda is inversely proportional to energy, जब भी लैम्बडा का वैल्यू हायर साइड पे होगा तभी तभी एनर्जी का वैल्यू लोअर साइड पे जाएगा. एम आई करेक्ट ऋतु? तो इफ आई से लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एक 490 एक 820 है, जिसका नंबर बड़ा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका एनर्जी कम रहेगा. E2 will be less and E1 will be more, since its energy, sorry, since its wavelength is less, its energy is more. Clear enough? Clear enough? Can we have one more thing correlated over here itself now only? Purva, let's do it. Sanika, हम लोग ने और एक फॉर्मूला पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में ही, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई में. एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. तो ये एच सी बाय लैम्बडा के साथ तो हम लोग ने खेल लिया, अब इसका कुछ लेना देना नहीं है. E इज इक्वल टू एच न्यू वॉज अनदर फॉर्मूला वेर आई होप यू रिमेंबर दिस न्यू. मैंने डिजाइनर V या U नहीं लिखा है. दिस न्यू इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी. याद है, मैं वेव नंबर पे नहीं आया हूँ. दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी. मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाया, ठीक है? दिस इज फ्रीक्वेंसी. राइट रोहन, याद आ रहा है? ऋत्विका, when we talk about this new is not any U वाला new. This new is somewhere like Tata new. उसका ऐप यूज कर लिया होगा अभी तक. Anyways, come back. So when we talk about this new, when we talk about this frequency, I can see on this equation that over here energy is directly proportional to frequency. Can I see that? Energy is directly proportional to frequency. दिख रहा है ना क्लियर कट? तो अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैन आई से जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तभी तभी एनर्जी बढ़ेगा. डज एवरीवन अग्री विद दिस? So let's say if I have two waves, one wave is with a frequency of, let's say a number of 190 and another is with a frequency of 125. Which one would have more energy? 190 वाला की 125 वाला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी. क्लियर है ना? आई होप दैट फीड्स द कॉन्सेप्ट. So I understood one basic thing, that energy is directly proportional to frequency
and is inversely proportional to wavelength. I hope यहाँ तक तुमने सब कुछ लिखा है. अपने को एट द एंड ऑफ द डे अपना ब्रैकेट का कंक्लूजन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी अपने को कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. वी आर जस्ट मेकिंग दिस बेस ओवर हियर ऑन विच एवरी न्यूमेरिकल कैन बी डेल्ट आउट एज वेल गोइंग फर्दर. लॉजिक बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं विच यूजुअली पॉप्स अप इन एंट्रेंस डायरेक्टली. आर वी गुड टू गो फर्दर? रोहन, एम आई गोइंग टू फास्ट? साक्षी, कितने सारे साक्षी? 1 2 3 4. कैन यू प्रोसीड? ऑलराइट, चलो. तो बेसिकली व्हेन आई से फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, on same ground there is another concept which we have read, which is the concept of wave number. ऐसे हम लोग न्यू लिखते हैं, रादर हम न्यू नहीं वी लिखते हैं और वी के ऊपर ऐसे बार डाल देते हैं, याद है? इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, so this wave number is nothing but it is reciprocal of wavelength. वो wavelength का reciprocal है. तो मान लो मैंने आपको दो वेवलेंथ दिए थे, राइट? वी हैड लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2. आई एम गोइंग टू कम टू कॉन्सेप्ट्स, डोंट वरी. एज ऑफ नाउ हम लोग मैथमेटिकल कर रहे हैं. विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू मूव टू कॉन्सेप्ट्स एज वेल. So when I say wave number, as the word goes, wave number is basically reciprocal of wavelength. It basically will tell you that what number of waves can pass through a specific area. मान लो एक 1 सेंटीमीटर का एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर के एरिया में कितने वेव्स पास हो पाएंगे, दैट इज बेसिकली वेव नंबर. क्लियर टू लियो? क्लियर टू लियो? So basically wave number is, can I say reciprocal of wavelength only? Can I say wave number is reciprocal of wavelength only? So when we go to define each and every individual thing step by step, जैसे हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले फ्रीक्वेंसी किया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आई होप यू ऑल रिमेंबर, इट इज हर्ट्ज, एचजेड लिखते, राइट? वेवलेंथ का यूनिट इज बेसिकली यू कैन राइट आर्मस्ट्रॉन्ग, यू कैन राइट सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो. कोई मुझे बता सकता है अगर वेवलेंथ का यूनिट सेंटीमीटर पकड़ा तो वेव नंबर का यूनिट क्या आएगा? यूनिट कभी भी निकालना है, ऊपर 1 का 1 रहेगा, इसका सेंटीमीटर नीचे लिख दो. कैन आई से 1 डिवाइड बाय सेंटीमीटर इज नथिंग बट सेंटीमीटर इनवर्स. I hope it is very much clear that wave number ka unit is going to be centimeter inverse. Clear enough, friends? Clear enough? Nothing to be ratified. Easy. Good to go. Can we proceed further? तो बेसिकली अगर मुझे अपना ये जो कोरिलेशन वाला टेबल चल रहा है, इफ आई हैव टू कंप्लीट दिस, energy is directly proportional to wavelength, inversely proportional, bad one. Energy is directly proportional to frequency, inversely proportional to wavelength, and directly proportional to wave number. Can I say that? Can I say that? Yes. I hope we are able to connect the dots. So going further, as we move to this specific numericals, where we are going to talk about correlations, how frequency, wavelength, and wave number, all the three can be correlated. तब भी ये concept important है. So please ensure that you note this table down. When we are going to talk about this individual terms कि boss wave number basically क्या होता है या frequency basically क्या होता है, we'll talk about those things as well. But as of now, I hope this particular concluding table is very much clear with all of us. Any doubts, any queries? Are we good to go? Sahil, Shiva, Sejal, Siddhi? Yeah, let's go. Suyash? All right. Okay, so I'm taking off everything from the screen. Going further, wave number, as I said, total number of waves that can pass through some specific area of 1 centimeter. Don't forget its unit is centimeter inverse, or you can write per centimeter as well. Per centimeter मतलब ऐसे लिखा जाता है. This is per centimeter. Instead of per centimeter, people prefer writing centimeter inverse. When we talk about frequency, frequency is basically the interval that वो particular चीज कितनी देर में बार बार हो रही है. तो अगर आपको याद होगा, स्कूल में हमको एग्जाम्पल देते थे, मेरे स्कूल में तो दिया था, आई एम श्योर आपको भी दिया होगा. 7 बजे बस आई, 7:15 को बस आई, 7:30 को बस आई, 7:45 को बस आई. Can I say the frequency of bus is that in every 15 minutes one bus is coming in? That is frequency, a particular event repeating itself after equal intervals of time. तो सेम वे एक वेव को एक पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में पास होने को जितना टाइम लगता है, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी. Frequency is the number of cycles of a wave to pass some specific point in a second. A second. Don't forget, a second. Clear enough? You can also give its unit as cycles per second. CPS लिखते हैं. The one which is widely used in industry is hertz. Clear?
तो हम लोग ने E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा देखा, हम लोग ने E इज इक्वल टू एच न्यू, एरिया मीन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेव नंबर डिडंट गेट यू मधु, कैन यू प्लीज कम अगेन? वेव नंबर तो इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है ना, तो अपना वेवलेंथ इज इन सेंटीमीटर, तो अपना वेव नंबर विल बी सेंटीमीटर इनवर्स. आई होप दैट solves the query. Madhu, going further, when you go to define frequency, usually कोई frequency का formula बता सकता है क्या? Anyone who can help me out with formula of frequency? हम लोग ने इसका भी formula actually कॉलेज में यूज किया था, if you remember. If you remember, अरे सीधा हिसाब है, E is equal to h nu, E is equal to h c by lambda. So can I say nu is equal to c by lambda? बोल सकता हूँ. मैंने फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा है, इसने फ्रीक्वेंसी को एफ लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को इसने डिनोशन अलग दिया, रेस्ट एवरीथिंग इज राउंड अबाउट सेम. क्लियर इनफ? आर वी गुड टू गो? लेट्स गो टू नेक्स्ट. सब बेसिक से चल रहा है अभी तक, हायर साइड पे हम लोग गए ही नहीं है, वार्म अप चल रहा है बॉस. लेट्स गो. सुप्रिया, सृष्टि, तेजल, त्रिषा. बाय द वे लास्ट संडे बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, बात करते हैं. चलो लेट्स गो. When we talk about electromagnetic spectra, there was one of the shocking parts in GPAT 21 or 22 and NIPER 21 as well. उन्होंने electromagnetic spectra पे question पूछ लिया था. When I say a question on electromagnetic spectra, ना, they would ask something like infrared radiation क्या से क्या wavelength में होता है, UV spectroscopy क्या से क्या wavelength में होती है, ये सारी basic चीजों पे question था. But if I say 200 to 400 nanometers, तो 200 to 400 नैनोमीटर्स में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है कि आईआर होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से एरिया में होता है, दैट बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आल्सो देयर. एंड हम लोग तो यूजुअली यूज टू होते ही नहीं कि हम लोग ये सारी चीजें भी पढ़े. चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो वी टेंड टू इग्नोर ना, उधर ही गड़बड़ क्रिएट हो जाता है. अभी क्लियर टिल हियर? कैन वी प्रोसीड फर्दर फ्रेंड्स? यस. Basically when we talk about this basics, I meant something like this. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला तो रेंज अलग होगा, सिर्फ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला तो हम 200 से 400 के बीच में ही क्लोज करेंगे. Then there is something known as infrared spectroscopy, there is something known as microwave spectroscopy. एक चीज याद रखना, be careful with the units. I repeat my words, be careful with the units. अगर आप यहाँ पे यूनिट्स ऑब्जर्व करते हो, स्टार्टिंग में नैनोमीटर 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 नैनोमीटर, अचानक वो माइक्रोमीटर लिखने लग गया, तो इसका जो टर्न ओवर है, इसका जो चेंज ओवर है, write that same thing in terms of nanometer so that you don't confuse it again. Clear है ना? सिर्फ कन्वर्ट ही करना है. कैन आई से 1 नैनोमीटर इज 10⁻³ माइक्रोमीटर? सही है क्या? मैं गलत चीज पहले बोलता हूँ. 1 नैनोमीटर इज 10⁻³ माइक्रोमीटर. योगेश, झील, यूसुफ, यश, सही जा रहा हो क्या? युक्ता, विघ्नेश, यस और नो? वर्षा, वैष्णवी, are we good to go? Basically when we talk about this different radiations, few which are of our interest are going to be this. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is one, infrared spectroscopy, IR spectroscopy is second, and UV visible spectroscopy, on which we are working out now, ultraviolet and visible, is third. Every spectroscopy has got its own application. अपने वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं. स्पेशली दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर मोर इन नाइपर कंपेयर टू अदर एनी एंट्रेंस. नाइपर में वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इस तरह घूम के आते हैं. आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस. One question is asking that which among the following spectroscopy is also known as, ये उसी को पता होगा जिसने शायद कॉलेज में चैप्टर पढ़ा होगा, which among the following spectroscopy is also known as electronic spectroscopy? Electronic. Let's see how many know it. I hope everyone is clear that electronic spectroscopy is another name for UV. अब वो UV spectroscopy को ही electronic spectroscopy क्यों बोलते हैं? Can anyone help me out with that? Can anyone help me out with that? क्यों UV को ही electronic spectroscopy बोलते हैं? Any specific reason? Okay, someone says electronic transition. कुछ और? Electronic transition is one of the rather the correct one, but कुछ और logical भी बता सकते हो क्या?
just for your and my information, when we talk about UV spectroscopy, now boss, UV spectroscopy always involves movement of only electrons. आई होप यू ऑल आर अवेयर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ तभी काम करता है जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं. जब तक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ओ सॉरी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चेन बॉन्ड, ओ सॉरी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तब तक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ भी रीडिंग नहीं देगा. इन ऑर्डर टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टू शो एनी रीडिंग, अपने को वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, जेम्स बॉन्ड या नहीं चाहिए, उसके बिना रीडिंग नहीं दिखेगा. If I have to define it in some other terminologies, what do we call this double bond and triple bond? Do we call it saturation or unsaturation? क्या बोलते हैं? मेरा थोड़ा इंग्लिश कच्चा है, इसके लिए पूछ रहा हूँ. Unsaturation. So can I say whenever there is unsaturation, only in that particular case my UV spectroscopy is going to work out? Point number one. Point number two. It's not only about saturation or unsaturation for UV visible spectroscopy to work out. It's more about a conjugated pi system in order to UV spectroscopy to be workout able. जैसे, let's say this is a benzene ring. Sorry, this is a cyclohexane ring. क्या ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव रहेगा? वेलकम टू धनश्री. क्या ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव रहेगा? बिग नो, नहीं रहेगा. इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. आपने थोड़े टाइम पहले बोला डबल बॉन्ड चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए इन ऑर्डर टू इट टू बी यूवी एक्टिव. ठीक है, चल एक डबल बॉन्ड लगा दिया. अब क्या ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीडिंग देगा? यस और नो? जो जो यस बोल रहा है ना वो सबका नाम लिखो. मेरे पास इनके एड्रेस है, हम लोग जेसीबी भेजेंगे इनके घर पे इनको उठाने के लिए. बाकी मुंबई वालों को मैं कल जेसीबी से उठा लूंगा. तुमने स्टेटमेंट पढ़ा? वहां पे लिखा था कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम. ऐसा इसको सर्कल अच्छा लग रहा था इसके लिए किया था क्या? ऐसे ही मजा आ रहा था मुझे, है ना? दैट्स द रीजन आई सर्कल्ड इट. इज दिस अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम माय फ्रेंड? बाय एनी चांस आपको क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है? If it is not a conjugated system, how is it going to absorb? It's not going to absorb, right? ये conjugated system मतलब मेरे को alternate single double bond चाहिए. अगर alternate single bond double bond है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगा. अगर alternate single double bond नहीं है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं चलेगा. अच्छा ये छोड़ दो. इफ आई मेक पेंट 1,3 डाइन, पेंट मतलब 10 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पेंट मतलब 10 कार्बन बराबर. ओ सॉरी 5 कार्बन. चलो यार आता है तुमको. हमने बोला पेंट 1,3 डाइन. तो सपोज दिस वाज पोजीशन नंबर 2, दिस वाज 3, दिस वाज 4, दिस इज 5. ये हो गया पेंट 1,3 डाइन. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पेंट 1,3 डाइन में डबल बॉन्ड्स है? क्या इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होने का मतलब होता है कॉन्जुगेशन. क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? तो क्या ये यूवी एक्टिव है? Got the logic? I hope you are able to connect the dots. So it's not that every alkene या every double bond is going to show you a UV active compound. Clear enough? In order for a compound to be UV active, in order for a compound to show you anything in UV spectroscopy, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, नॉट जस्ट वन. ऐसा नहीं है कि हर किसी में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा या कॉन्जुगेशन होगा तो वो यूवी एक्टिव होगा ही. बहुत बार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, ड्यू टू विच इट इज यूवी एक्टिव, जो हम लोग चैप्टर खत्म करने जाएंगे तब देखेंगे. So in all this particular case where the compounds have some different specialities in them, वो ज्यादा फोकस में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शंस पे ही ज्यादा आते हैं. Am I clear enough? क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शंस पे ही ज्यादा आते हैं. Let's go further. All right. When you talk about UV visible spectroscopy and pi system, मुझे एक बात बताना. एक होता है सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है जेम्स ओ सॉरी पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ना, सॉरी एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन. सब लोग बोलते हैं एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. यूनिटी, हाँ इलेक्शन लड़ने आए हो. एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है एग्रीड. तो एक सिग्मा बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन. अच्छा एक पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ना. एक पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बराबर ना, है ना? मुझे उठा के फेंक दो. मैंने एक पाई बॉन्ड बोला, मैंने ओवरऑल पाई बॉन्ड्स नहीं बोले. मैंने ये नहीं बोला वो एटम में कितना है. आई जस्ट सेड वन पाई बॉन्ड. डिड आई से वन एटम हैविंग पाई बॉन्ड? आई डिडंट से दैट, राइट? मजा आता है तुमको जानबूझ के ये सब करने में.
एक सिग्मा बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पाई बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट 4 साल 5 साल का पेपर उठा लो, उसमें से कोई तो नाइपर पेपर में एक क्वेश्चन था, 1 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। एक सिग्मा बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पाई बॉन्ड मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, दोनों बॉन्ड में फर्क बहुत कुछ होता है। व्हेनेवर बिटवीन टू एटम्स द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्स, दैट फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। वो सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, पाई बॉन्ड का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी नहीं होता। बाकी सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए हमें फॉलो करते रहिएगा, एंट्रेंस में ये नहीं पूछा जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। कैन वी प्रोसीड फर्दर? क्लियर ना? कैन वी गो गो गो? ऑलराइट, तो सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड यूवी एक्टिव कभी भी नहीं होने वाला है, उसको पाई बॉन्ड चाहिए, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड चाहिए इन ऑर्डर टू बी एक्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट why UV visible spectroscopy is also called as electronic spectroscopy is, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही डिटेक्ट होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन के सिवा और कुछ डिटेक्ट होता है क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन के सिवा और कुछ डिटेक्ट होता है क्या? नो। conjugation again involves electrons, so somewhere without electrons this is not going to work out. That's the reason your UV visible spectroscopy is also known as electronic spectroscopy. Not only that, when we go to IR spectroscopy, IR spectroscopy के लिए भी एक specific नाम है। As of now याद रखो, IR spectroscopy is specifically for functional groups, अलग अलग functional group के लिए IR spectroscopy है। And when we talk about nuclear magnetic resonance spectroscopy, बात करेंगे ये भाई तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही खेलते, इनको बाकी और किसी से लगाव ही नहीं है। Can we proceed further with this chapter specifically? Two statements coming on screen, ये दोनों statement के बारे में आपको already पता है, just read it and if you have any queries let me know. Left to right मतलब left to right, वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हुआ, ओके। और वेवलेंथ बढ़ता है तो हम लोग ने सीखा है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखा है ना तुम लोग ने, लास्ट स्लाइड पे लिखा था ना, they both are inversely proportional, right? So whenever my wavelength is going to increase, my frequency is always going to decrease. Am I correct? कौन बोला इसमें इतना चिल्ला काय को रहा है? आई होप यू आर क्लियर ना। तो जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी भी कम होगा और एनर्जी भी कम होगा, राइट? वैभवी, वैष्णवी, वैशाली, श्रेया, स्नेहा, शिवा, एम आई गोइंग करेक्ट ऑन सेम ग्राउंड? कभी भी एक एटम जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इट टेंड्स टू जंप। अच्छा एक सिंपल चीज बता, तू है और मैं हूँ, ठीक है, वी बोथ आर टुगेदर एंड यू हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट द डे, हार्ड वर्क, स्टडीज, कॉलेज, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, और मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ, हाथी के जैसे बैठा हूँ बस ऐसे ही। विच पर्सन विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव मोर फास्टर? द वन विच इज हैविंग मोर एनर्जी, राइट? तेरे और मेरे में एनर्जी उसके पास ज्यादा होगा जिसने सुबह से कुछ एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं किया है। आई एम आइडल, मैंने कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं किया, एंड यू हैव बीन वर्किंग हार्ड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट ईयर्स, डे इन डे आउट, सुबह शाम मैसेज का रिप्लाई करना, सोने के पहले गुड नाइट बोलना, उठ के गुड मॉर्निंग बोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड विथ एनर्जी, will you be able to run fast or I'll be able to run fast? Obviously I'll be able to run fast since I have more energy reserves with me. तो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वापस चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है, उसको गुड नाइट बाद में बोल देना, अभी तो 7:45 ही बजे, खाना भी नहीं खाया होगा उसने। Coming back to chapter, what we were trying to basically address is whenever any atom is going to accept any sort of energy, अगर तूने मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कैन आई से इट विल स्टार्ट जंपिंग, इट वोंट स्टे एट वन पोजीशन। जिसके पास भी एनर्जी रहेगा वो कभी भी स्टैटिक रहता है क्या? जिसके पास भी एनर्जी रहता है क्या वो कभी भी स्टैटिक रहता है क्या? द वन which has energy will always be unstable, will always be willing to move from one place to another, and if you are tired you just want to sleep, right? आपको कुछ नहीं करना है, you just want to rest. Can I say energy and stability are inversely proportional? I hope everyone agrees with that. Energy and stability is inversely proportional. याद रखना, the ones who are stable don't have energy, वैसे मत लेना उसको। I repeat, energy and stability is inversely proportional, but it doesn't mean that the ones who are stable doesn't have energy. Clear enough? I know ये थोड़े contradictory statements है, but as we go further, this will get more clarified. Can we proceed?
तो सेम ग्राउंड्स पे जब एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा है, वो क्या वहां का वहीं पे बैठेगा? नहीं, वो उड़ी मारेगा ग्राउंड स्टेट से, इट विल जंप टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वापस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जंप करेगा, इट वोंट स्टॉप एट वन स्पेसिफिक लोकेशन। क्लियर इनफ? अच्छा, ऑन द अदर साइड, whenever we lose energy, have you ever climbed any bridges across on any of the stations? क्लाइम, आई मीन स्टेयरकेस पे नहीं चढ़ने का, वो हिल जैसा रहता ना, वी स्टार्ट वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, वी हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज क्लाइंबिंग द ब्रिज। एस्केलेटर यूज करने नहीं बोला है, क्लाइंब चल के चढ़ने बोला है। और वही सेम चीज पे से जब हम लोग नीचे आते हैं, ओ दादर, तो वी डोंट नीड टू हैव एनी एनर्जी, राइट? हम लोग अपनी बॉडी को लूज भी छोड़ देते हैं तो भी वो अपने आप नीचे जाता है। इनफैक्ट वी ट्राई टू कंट्रोल आवरसेल्फ कि भाई मैं ज्यादा फटफट नीचे ना गिरूं। I hope you are able to get what I'm trying to put across. So what I'm trying to say is, whenever energy is not there, whenever my electron doesn't have energy, my electron will be able to jump from the upper excited energy states to the lower states very easily. उसको मेहनत नहीं लगेगा, वो ऊपर से नीचे ऐसे ही घुस जाएगा, धप 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 करके गिर जाएगा। You know what? Our pharmaceutics is same as our formulation in kitchen, जो भी आप खाना बनाते हो, and same way our all our subjects or our learnings are equivalent to the life learnings. ग्रो होना है तो एनर्जी बहुत लगेगा, यू हैव टू कीप वर्किंग डे इन एंड डे आउट, हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन एज एंड व्हेन एज एंड व्हेन, जब 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 गिरना है तो बस खुद को छोड़ देना है, अपने आप फटाक करके नीचे आ जाएगा। फॉलिंग इज ऑलवेज इजी, राइट? ग्रोइंग अप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। दैट सेम लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर। तो ज्यादा हो गया, आजा कम बैक। तो बेसिकली एनर्जी हो गया, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया, एंड सिंस entire chapter of UV visible spectroscopy is around lambda, स्टेबिलिटी भी हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास दो वेवलेंथ है, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, आई से लैम्बडा 1 इज एट 955 एंगस्ट्रॉम्स and lambda 2 is 455 angstroms. Which among both of them is unstable? Which among both of them is unstable? हमने अभी पढ़ा, अनस्टेबल वो होता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है। सो आई नीड टू आइडेंटिफाई द वन विच इज हैविंग मोर एनर्जी। एम आई करेक्ट? जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा वही अनस्टेबल होगा। ज्यादा एनर्जी उसके पास होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, राइट? हम लोग ने थोड़े टाइम पहले देखा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। करेक्ट? करेक्ट माय फ्रेंड्स? मैंने तुम लोग को एनर्जी का रिलेशन लिखवाया था, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्वेश्चन ने तुमको स्टेबिलिटी नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने तुमको पूछा है दोनों में अनस्टेबल कौन सा है। अनस्टेबल तो डायरेक्टली हुआ ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। तो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 में शॉर्ट वेवलेंथ इसका है, लैम्बडा 2 का वेवलेंथ ज्यादा शॉर्ट है, तो लैम्बडा 2 की एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। I hope we are able to connect the dots. How many of us were 111? I can see more of 111. ऐसा क्यों गड़बड़ किया रे? लैम्बडा एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी और अनस्टेबिलिटी पूछा था, स्टेबिलिटी नहीं पूछा था। उधर गड़बड़ किया क्या? आई होप एवरीवन गॉट द क्वेश्चन। आई होप एवरीवन गॉट द क्वेश्चन। कैन आई, अच्छा यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? आई सेड ये दो वेवलेंथ दिए हैं, ये दो वेवलेंथ में से कौन से वेवलेंथ की अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी? आई डिडंट से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आई सेड किसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अनस्टेबिलिटी, अजीत, युक्ता, वंदिता, मधुरा, अंशिका, which one will be more unstable? Clear now? Can you proceed further? Let's go to the basics of UV visible spectroscopy now. UV visible spectroscopy में basically होता क्या है? You have something which is known as source. वो सोर्स समझ लो कोई ना कोई लैंप है, घर पे भी होता है ना स्टडी लैंप। स्टडी लैंप के नीचे बुक्स होते हैं, बुक्स के नीचे मोबाइल होता है, तो स्टडी लैंप है विच इज द सोर्स ऑफ लाइट। भावनाओं को संयम में रखिए। तो ये लैंप में से रेडिएशन आने वाले, ओके, देन दिस रेडिएशन विल बी इंसिडेंट अपॉन वन कवेट। ये कवेट में अपना सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर ड्रग डिजोल्व होता है एंड ऑल दो स्टफ्स इन, राइट? तो हमको ये कवेट के अंदर जो सॉल्वेंट है ना, उसके अंदर ड्रग कितना है, आई वांट टू आइडेंटिफाई दैट। आई रिपीट, एक कवेट होता है विच इज आफ्टर योर लैम्प,
बीच में बहुत कुछ होता है, मोनोक्रोमैटोसिल्ट, वो सब के बारे में बात करेंगे। आज अपना इतना याद रखिए, लैम्प है, लैम्प के आगे एक कवेट है, ये कवेट के अंदर सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट के अंदर मेरा ड्रग डिजोल्व है। आगे जाके वापस बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, उसके बाद एंड में एक डिटेक्टर होता है जिसके ऊपर मैंने यहाँ से जो रेडिएशन छोड़ा था उसमें से कितना रेडिएशन यहाँ पे आया है वो पता चलता है। शैल आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? शैल आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? तुम लोग यस नो बोलने में भी इतना टाइम क्यों लेते हो? मैंने बोला आई हैव अ लैम्प ओवर हियर, ये लैम्प से रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं यहाँ से, बीच में एक कवट है, दैट कवट इज नथिंग बट यू कैन से अ सैंपल होल्डर। ऐसा एक होता है, उसके अंदर सैंपल होता है, ओके। इसके अंदर सैंपल रहेगा, आगे वापस कुछ ना कुछ होता है, अल्टीमेटली एट द एंड आई हैव अ डिटेक्टर। लेट्स से मैंने ये लैंप में से 500 रेडिएशन छोड़े। रेडिएशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कभी भी नंबर्स में नहीं होता है, दिस इज जस्ट अ रफ एग्जांपल टू यू। लेट्स से मैंने यहाँ से 500 रेडिएशन छोड़े और मेरे डिटेक्टर 500 में से सिर्फ 300 ही रेडिएशन पहुंचे, बाकी के 200 रेडिएशन किधर गए? बाकी के 200 रेडिएशन किधर गए? एब्जॉर्ब हो गए, परफेक्ट। ये जो कवेट था जिसके अंदर कुछ सैंपल था, उसने 200 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स द रीजन वो 200 रेडिएशन वहां पे नहीं पहुंचे। ये जो 300 रेडिएशन वहां पे पहुंच गए, कैन आई से दोज आर ट्रांसमिटेड रेडिएशन, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो गए ना सोल्यूशन के, सोल्यूशन ने उसको रोका नहीं, वो 300 को जाने दिया, तो कैन आई से दैट्स द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। कैन आई से द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज दैट 200 व्हिच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। आई होप वी आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, कुछ भी रटना नहीं है, क्लियर ना? श्योर पब्लिक? ऋत्विका, रोशनी, साहिल, सानिका, कैन यू प्रोसीड फर्दर? ऑफलाइन लेक्चर्स में क्यों नहीं आते हो? कल मिलता हूँ रुको। Alright, so when we talk about radiant power is basically what amount of energy from your lamp is reaching a specific area per second. पर सेकंड में कितना रेडिएशन अपने लैंप में से अपने सैंपल के कवर्ड पे पहुंच रहा है, दैट्स द रेडिएंट पावर। आपने कितना एनर्जी फेंका उस पे, गुणवन मीनाक्षी, ओके। सो दैट्स योर रेडिएंट पावर। ट्रांसमिटेड पावर इज इसमें से कितना पावर आगे चला गया, विच कुड गॉट ट्रांसमिट थ्रू इट। क्लियर टिल हियर? द बेसिक इज क्लियर इनफ? I have few things to confuse you over here going further. So be careful, confuse होना मत. Use your basics and answer it carefully. कोई गाय मत करना, तुमको आंसर आता है, okay? No rocket science with the next upcoming questions. Let's say दो कवेट है, मतलब दोनों में सैंपल है, ओके। मैंने दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फेंका, 700 700। मुझे नहीं पता कि किसके अंदर ड्रग ज्यादा है किसके अंदर कम है, आई डोंट नो दिस, ओके। I don't know which cavite has more amount of drug. This is cavite 1, this is cavite 2. I don't know which cavite has more amount of drug. दोनों को मैंने डिटेक्टर पे भी अटैच किया। जब मैंने डिटेक्टर 1 पे देखा तो मुझे 500 रेडिएशन वापस मिले थे और यहाँ पे मुझे 450 रेडिएशन वापस मिले। Between 1 and 2, which one has transmitted more and which one has absorbed more? ट्रांसमिट किसने ज्यादा किया, 1 या 2, और एब्जॉर्ब किसने किया ज्यादा, 1 या 2? यहाँ पे 700 था, 500 एंड तक पहुंचा, मतलब कैन आई से 1 वाले ने 500 को ट्रांसमिट किया, तो दिस इज माय ट्रांसमिटेड रेडिएशन, दिस 450 इज माय ट्रांसमिटेड रेडिएशन, करेक्ट? तो कैन आई से इट वाज द फर्स्ट वन व्हिच हैज ट्रांसमिटेड मोर। जिसने ट्रांसमिट ज्यादा किया है, वेरी ऑब्वियस, अगर उसने ट्रांसमिट ज्यादा किया है तो उसने एब्जॉर्ब कम किया है। एम आई करेक्ट सफीना? राइट सेजन? तो अगर उसने कम एब्जॉर्ब किया है, दैट्स द रीजन उसने ट्रांसमिट ज्यादा किया है। इसने अगर ट्रांसमिट कम किया है मतलब टू ने एब्जॉर्ब ज्यादा किया। तो कैन आई समवेयर से दैट ट्रांसमिटर एंड एब्जॉर्बेंस कॉन्सेप्चुअली माइट बी टू ऑपोजिट थिंग्स? गुड वन अनिका, कैन आई से दैट? साक्षी, पृथ्विका, राजेंद्र, बोल सकता हूँ, प्रणव, प्रार्थना, ओमकार, निधि, आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर अबाउट, राइट? मयूरी, मुराद, आयुष, कुटे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। कॉलेज था क्या आज? आई कुड सी फ्यू मोर न्यू जॉइनर्स लेट इन, डू वी हैव कॉलेज टुडे? सॉरी, बट आई होप यू आर वेल विद इन टाइम एट होम। तो वेरी ऑब्वियस, जो ट्रांसमिट कम कर रहा है उसके अंदर ड्रग ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है,
That can be one of the reasons, not necessarily that that's the only reason. Lai offline कब आएगा? Clear enough? Can we proceed further, Komal, Ishika? Let's go to next part. Absorbance is basically negative of transmittance. Do you agree with this? अभी logarithm as of now word भूल जाओ, but can I say absorbance and transmittance are two opposite things? That's what we just discussed few minutes back, right, Geeta, Devisha, Dolly, Darshana? Can you proceed further? Going to one of the favorite questions which usually comes up with every NIPER paper, lambda max. Lambda max. तो मैं तुमको ही पूछ लेता हूँ, तुम ही बता दो क्या होता है lambda max. Lambda max, when we talk about, let's say this is going to be concentration over here. Y-axis is concentration. X-axis is lambda, okay, wavelength. And ये कुछ ग्राफ बनाया है, and ये ग्राफ पे कुछ अलग अलग wavelength है. Let's say this is lambda 1, this is lambda 2, then you have at this peak lambda 3, and then you have the next peak which is of lambda 4. And they say that lambda 1 का जो value है ना, that is lambda max. So how do you define lambda max in that case? वो बोल रहा है कि जो lambda 1 का value है ना, that is lambda max. So how do you define that? How do you define that? Can I say lambda max or maximum wavelength, or it is the one at which the absorbance is maximum? जो wavelength पे वो maximum absorbance दिखाएगा, can I say that's lambda max? I hope everyone agrees. ये तीनों में एक ही रहेगा ना lambda max, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा concentration absorbance दिखा है, बाकी सबने कम absorbance दिखा है comparatively. That's the reason only your lambda 1 will be lambda max. Had it been only one curve, your answer might have been different. I hope that out. Rohan, आएंगे Beer-Lambert law पे भी. Wavelength at which a substance absorbs maximum energy, which ultimately correlates it with your concentration, that's going to be lambda max. Clear till here? Can we proceed further? Last 2-3 साल में एक बहुत बेहतरीन सवाल नाइपर के पेपर में और एक बार जीपैट के पेपर में भी आया है. That has been around units of something known as specific absorbance and molar absorptivity. मणिपाल में भी आया है, बिट्स में भी आया है. हाँ, यूनिट्स. जैसे तुमको वेवलेंथ का यूनिट पूछा तो क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? साइकिल्स पर सेकंड ना, कितना साइकिल एक सेकंड में चला है? ओ, हर्ट्ज, एचजेड. On same grounds, there is something known as specific absorbance. There is something known as molar absorptivity as well. ये दोनों के भी खुद के कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स है, ये दोनों के भी खुद के कुछ स्पेसिफिक इक्वेशंस है, which we have to remember. Although they are very much logical, there is no theory to be ratified over here, and at the same time are easy to know as well. Talking about the first one, molar absorptivity. पहले तो दो तीन चीजें समझना स्टार्ट कर दो. What is this capital A? What is this capital A? This is absorbance. Point number 1. कुछ भी लिखना मत, as of now सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दे, लिखने को मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी. This capital A is absorbance. Epsilons is nothing but molar absorptivity. So A is absorbance, epsilons is molar absorptivity. B is basically the distance. B is basically the width of your cuvette. जो अपना सेल था ना, सैंपल होल्डर, उसका जो width होता है, that is basically B, which is also known as path length, thickness of your particular cuvette. And lastly, your C is nothing but concentration. ठीक है? A is absorbance, epsilons is molar absorptivity, B is distance of your cuvette, C is your concentration. अब यूजुअली पंगा क्या हो जाता है, हम लोग को पता है कि भाई एब्जॉर्बेंस का यूनिट क्या आएगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन आंसर दिस करेक्ट. एब्जॉर्बेंस का यूनिट क्या आएगा? ये लास्ट संडे से भी 2-3 लेक्चर में ऐसे सवाल पूछ ले जो होता ही नहीं है. अभी भी ऐसी चीज पूछ रहा है जिसका यूनिट ही नहीं होता. ऐसा एब्जॉर्बेंस इज यूनिटलेस. ऑलराइट. When we talk about epsilons, that's molar absorptivity. अगर मुझे किसी ने molar absorptivity का यूनिट पूछा, ओके,
अगर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का यूनिट पूछा तो कैन आई से एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी सी, कैन आई से दैट ए इज यूनिटलेस, ए इज यूनिटलेस, तो भूल जाओ। बी क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर लिख दिया। दूसरा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर, सेंटीमीटर इंटू मोल्स पर लीटर, ये पर लीटर नीचे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, सो कैन आई से दिस विल गो इन न्यूमरेटर, ऊपर जाएगा। जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि ये एब्जॉर्बेंस का कुछ भी यूनिट नहीं है, उसका क्रॉस मारा था, तो ये लीटर ऊपर जाएगा। तो कैन आई से दिस इज लीटर पर सेंटीमीटर पर मोल, या तो लीटर पर सेंटीमीटर पर मोल के बदले वी कैन ऑल्सो राइट इट एज लीटर सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, कैन आई राइट इट बोथ द, कैन आई राइट इट बोथ द वेज, लीटर पर मोल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे कॉन्सेंट्रेशन सर इज ऑलवेज मोल्स पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोल्स पर लीटर, आई होप दैट्स क्लियर। तो जो नीचे था वो लीटर ऊपर आ गया, इसके लिए लीटर एज इट इज रहेगा। मोल्स और सेंटीमीटर आपका डिनोमिनेटर में था ना, जैसे हम लोग ने वेव नंबर में किया था, वेव नंबर वाज 1 बाय वेव लेंथ, सो यू कॉल्ड इट सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, 1 डिवाइड बाय सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। सेम वे मोल्स और सेंटीमीटर नीचे है, तो आप उसको लीटर और आगे सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स लिखोगे। आई होप इट्स क्लियर इनफ, आई होप इट्स क्लियर इनफ। चले आगे बॉस, ये तो इजी हो गया, इसको मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। बट देयर इज समथिंग नोन एज स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस, और स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस के भी यूनिट्स पे क्वेश्चन आके गया है। यस, देयर हैज बीन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस यूनिट। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग सुप्रिया महाजन, सुप्रिया महाजन के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, ओके, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी सबका है, तो सबकी यूनिट बहुत केयरफुली कर लेना। आई रिपीट, सबके यूनिट्स बहुत केयरफुली कर लेना। We talk about specific absorbance. Specific absorbance is a specific situation when your path length is 1 centimeter specifically and your concentration is grams per 100 ml only. तो आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, राइट, यू ऑलरेडी फिक्स द वॉल्यूम, यू ऑलरेडी फिक्स द पाथ लेंथ, तो वेरिएबल क्या बचा, 1% क्यों लिखते, 1 सेंटीमीटर क्यों लिखते, 1 centimeter is due to the path length, 1% is indirectly due to the concentration which will be facing across and putting across. Don't worry, as we actually get started with Beer-Lambert law, this should become more easy. Beer-Lambert's law semester 6 या 7 में जब भी UV spectroscopy करोगे, you would actually do that entire big derivation. कॉलेज में अपने को थियरी एग्जाम में डेरिवेशन लगता है, एंट्रेंस में अपने को डेरिवेशन स्पेसिफिकली पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, एंट्रेंस में डेरिवेशन नहीं लिखना है। बट आई शुड नो दैट बियर्स लॉ क्या स्टेटमेंट बोलता है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या स्टेटमेंट बोलता है, दोनों का एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है, एंड हाउ इट इज बीइंग रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर आवर एंट्रेंसेस। क्लियर ना? डोंट वरी गौरव, वी आर गोइंग टू डू दैट विद दिस स्लाइड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस, वो कहीं ना कहीं अपने एक इक्वेशन से आता है which would correlate it to absorbance ABC. Epsilon was molar absorptivity. अब हम लोग स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की बात करने वाले। So when we talk about that, we take into account two things. One is our beer uncle, BEER वाले बियर अंकल, और कोई बियर अंकल मुझे नहीं पता है, वो भालू वाला बियर नहीं। ऑलराइट, so when we talk, क्या हुआ तुझे, कौन सा वाला लगा, कौन सा लगा आशीष, अनुजा, भूमिका, अश्विनी? So when we talk about BEAR, Bhalu, no, when we talk about BEER, yes. Monochromatic light will come to it. Monochromatic light is basically a light which is of only one wavelength. So whenever you take any source, आप घर पे जब बल्ब भी चालू करते हो, it's not a light of one wavelength. It's a light of multiple wavelengths at a time. And when you say monochromatic light, you basically mean that you want to allow a light of some specific wavelength. 250 सेंटीमीटर या 250 नैनोमीटर, मतलब 250 नैनोमीटर का ही वेवलेंथ जाएगा. That is what you basically mean by monochromatic light. Coming back to this, when you talk about
specific absorbance going with A is equal to ABC, you take into account two laws. One is Beer's law, another is Lambert's law. इसको बियर लैम्बर्ट लॉ करके भी बोला जाता है साथ में टुगेदर. So when you talk about Beer's law, Beer's law talks about your intensity of light with regards to concentration, and your Lambert's law talks about intensity of light with thickness of your specific media. Can I say thickness is indirectly the path length only? If I have to make it more simpler to understand, this is my lamp जहाँ से रोशनी आने वाली है, I mean the light. This lamp will put across multiple radiations, multiple wavelengths light. You have in between something known as monochromator. Understand monochromator क्या करता है? मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि ये 8-10 वेवलेंथ है ना, उसमें से वो सिर्फ एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही आगे अलाउ करता है. Can anyone tell me why you need a monochromator? Noted, Mahima. Can anyone tell me why do I need a monochromator? अरे गौरव उल्टा बोल रहा है. एक लैंप है. आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल. गुड वन कृतिका. एक लैंप है. ये लैंप में से मल्टीपल वेव्स आ रहे हैं विच आर बेसिकली आर वेवलेंथ. इंसिडेंट रेडिएशन, ऐसा वर्ड सुना होगा आपने, इंसिडेंट रेडिएशन. इंसिडेंट रेडिएशन इज बेसिकली द रेडिएशन विच इज कमिंग फ्रॉम द लैंप. ओके, this incident radiation which is coming from lamp, that is being made to pass through a monochromator. वो monochromator word goes, mono means one, am I correct? Mono means one. तो ये monochromator का काम एक ही है, that out of this entire radiation coming at a go, it will allow wavelength of only one specific wave of one specific wavelength to pass through it. मान लो इसमें 8-10 वेवलेंथ है, 258, 358, 302, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही आगे जाने देगा. इसके लिए मोनोक्रोमेटर स्लिट होता है. जब हम लोग मशीन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, विल गो मोर इन डेप्थ. एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड इट अलाउज वन स्पेसिफिक वेवलेंथ टू पास थ्रू इट. अब वो वन स्पेसिफिक वेवलेंथ इसमें से पास होके ये साइड आ गया. इट हैज पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर. द नेक्स्ट थिंग इट डज इज इट इंटरैक्ट्स विथ योर कवेट. कवेट स्टार्टिंग में बताया था. कवेट CUVETTE. दिस कवेट इज नथिंग बट योर सैंपल होल्डर. इसके अंदर अपना सैंपल होता है. लेट्स से इसमें पानी भरा है, पानी में मैंने मेरा ड्रग डिसॉल्व करके रखा है, एंड देन दिस मोनोक्रोमेटर लाइट कम्स इन contact with this specific sample. After that the radiation passes through it and it is detected on a detector. यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ मिले थे, क्यों नहीं मिले थे, बाद में क्यों नहीं मिले, पहले कहाँ मिले थे, कैसे देखा था, किसने पहले मैसेज किया था, सब याद आ गया. कम बैक, कम बैक, किधर गया? ठीक है, बाद में का बाद में याद दिलाना. So basically when I have got this entire flow and my radiation is passing through the sample holder through the detector, many times the intensity decreases. हम लोग ने थोड़े टाइम पहले एक स्लाइड पे बात किया था कि इंटेंसिटी कम हो गया, तब हम लोग ने कोरिलेट किया था विद एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस. याद आया? सेम वे इंटेंसिटी कम हो रहा है मतलब मेरा सैंपल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है. कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? अंडरस्टैंड. अगर मैंने दो कवेट लगाए, ओके, एक कवेट है जिसका थिकनेस है 100 सेंटीमीटर और दूसरा कवेट है जिसका थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, से वेव पटाख से पास हो सकता है. फ्रॉम वेयर इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम एंड फ्रॉम वेयर इट विल टेक अ शॉर्टर टाइम. फ्रॉम वेयर द वेव विल टेक अ लॉन्गर टाइम एंड फ्रॉम वेयर, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है थिकनेस ऑफ माय सैंपल होल्डर. जिसका डिस्टेंस छोटा है, कैन आई से देयर इट विल टेक अ लॉन्ग लेसर टाइम. एम आई करेक्ट? So can I say जैसे जैसे thickness of my sample holder decreases, my intensity of light might just increase. Can I say thickness of the sample holder is inversely proportional to intensity of light? जितना ज्यादा थिक रहेगा उसको उतना ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा, राइट? इट विल कम इन कॉन्टैक्ट अगेन एंड अगेन एंड अल्टीमेटली द इंटेंसिटी ऑफ transmitted light might just go down, might just decrease. Am I correct? इंटेंसिटी मतलब पहले एकदम बल्ब देखा है, बल्ब आप कभी भी बल्ब चालू करो उसके आजू बाजू सबसे ज्यादा उजाला लो,
and as you go away, the intensity decreases. It's not that bright. That's what you mean by the word intensity. यहाँ पे भी वही हो रहा है. अगर मेरा पाथ लेंथ बढ़ जाता है, अगर मेरा थिकनेस बढ़ जाता है कवर्ट का, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है. सो कैन आई से अगर थिकनेस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी. कैन आई से दैट? यस. So can I say thickness is inversely proportional to intensity of light? Siddhant, Dhanashri, Disha, Diksha, Dharini, Dolly, Pranita, Kanchan. I hope it's clear enough, right, Madhura? Can we proceed further? Clear till here? So this relation that thickness and intensity of light is inversely proportional is nothing but Lambert's law. Lambert's law states that your intensity of light decreases with increase in thickness of the medium. जैसे ही मीडियम की थिकनेस बढ़ेगी वैसे आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स व्हाट यू मीन बाय द वर्ड लैम्बर्ट्स लॉ. क्लियर टिल हियर? कैन वी प्रोसीड फर्दर? कैन वी प्रोसीड फर्दर? रादर बैकवर्ड्स, राइट? रादर बैकवर्ड्स, करेक्ट. कमिंग टू कंसंट्रेशन नाउ. बियर्स हमने किया ही नहीं है मैम. आई हैवंट टॉट बियर्स टिल नाउ. कमिंग टू बियर्स लॉ. लेट्स से ये एक कवर्ट है, ये दूसरा कवर्ट है. अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने दो कवर्ट किया था जिसमें से दो ट्रांसमिटेड लाइट आई थी. तो तुमने बोला हो सकता है वो दूसरे कवर्ट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ये दोनों कवर्ट में ड्रग है. कितना ड्रग है वो मुझे नहीं पता. ओके, इधर D2 इधर D1, दोनों में ड्रग है. दोनों पे मैंने 900 नैनोमीटर का वेवलेंथ फेंका, या तो 900 वेव्स फेंके, सॉरी, दोनों पे मैंने 900 वेव्स फेंके. ओके, आई हैव इंसिडेंट 900 रेडिएशन ऑन बोथ ऑफ दिस कवर्ट. जब मैंने 900 रेडिएशन ये दोनों कवर्ट पे फेंके, प्रियंका, मधु, लक्ष्मी, आई होप यू आर देयर, जय, तो 900 रेडिएशन में से यहाँ से भी कुछ रेडिएशन बाहर आया, यहाँ से भी कुछ रेडिएशन बाहर आया ऑन टू द डिटेक्टर. On this detector 1, I got approximately 550 radiation, and on this detector 2, I got 150 radiations detected. Incident radiation 900 था, यहाँ पे detected radiation 150 ही था. कहाँ पे ट्रांसमिटेंस कम हुआ? ट्रांसमिटेंस लेस कहाँ पे हुआ? T1 में कि T2 में? ट्रांसमिटेंस कम होना मतलब कहाँ से कम रेडिएशन बाहर आए? यहाँ से कम रेडिएशन बाहर आए कि यहाँ से कम? यहाँ पे सिर्फ 150 डिटेक्ट हुए आउट ऑफ 900, यहाँ पे 550 डिटेक्ट हुए. यहाँ पे डिटेक्ट हुए मतलब यहाँ पे कम ट्रांसमिट हुआ था. तो कैन आई से T2 में नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हिच गॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम माय सैंपल होल्डर टू द डिटेक्टर वर लेस? कैन आई से दैट? कैन आई से दैट T2 में नंबर ऑफ रेडिएशन जो ट्रांसमिट हुए दोज वर लेस? नाउ लेट्स लुक एट इट द अदर वे अराउंड. ये T2 हो गया जहाँ पे ट्रांसमिटेंस कम हुआ था, करेक्ट. अगर ट्रांसमिट कम हुआ है, इंसिडेंट तो उतना ही किया था ना, दोनों पे फेंका तो 900 900 ही था, राइट डॉली? अगर दोनों पे 900 900 ही फेंका है और ट्रांसमिटेंस में कम आया है, मतलब बाकी का कौन खा गया? कोई ना कोई तो खा गया होगा. कौन था वो जो खा गया? कैन आई से द vial in which there was drug that has absorbed more radiation in D2. वो वायल दिख रहा छोटा है, बस उसमें ड्रग ज्यादा था, ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब्ड मोर रेडिएशन. उसने 900 में से ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया है, इसके लिए कम रेडिएशन बाहर आया ना. एम आई करेक्ट? हीत, प्रणीता, जय, लक्ष्मी, मानसी, निधि, ओम, प्रणव, आर यू गोइंग गुड? प्रतीक्षा, क्लियर ना? इतना बुलाते हो, नेक्स्ट टाइम तुमको बोलने को लगाना चाहिए. क्लियर टिल हियर? कैन यू प्रोसीड फर्दर? चले. तो बेसिकली Beer's law wants to state that your intensity of monochromatic light, intensity of light जैसे थिकनेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैन आई से वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा. अगर एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा तो कैन आई से इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वुड गो डाउन. आई होप एवरीवन अग्रीज विद दिस, एंड हम में से कोई भी इसको रट नहीं रहा है, राइट? राधिका, प्रियंका, राजेंद्र, प्रवीण, प्रेमा, ऋतु, रिया, साहिल, समीक्षा, श्रुति. अटेंडेंस ले रहा है क्या ये? मेरा नाम कब आएगा? यस अश्विनी, विल कम टू दैट एज वेल. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अंश, विच पार्ट टू बी रिपीटेड? थिकनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन. आई सेड हम लोग ने देखा ना, जब भी थिकनेस बढ़ता है तभी तभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होता है. तो थिकनेस एंड इंटेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल.
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई मीन ट्रांसमिटेड लाइट। ऑन सेम ग्राउंड कॉन्सेंट्रेशन भी जब भी बढ़ता है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो कम ट्रांसमिट होगा, राइट सृष्टि? कम ट्रांसमिट होगा तो ऑब्वियसली द ट्रांसमिटेड लाइट वुड बी लेस। करेक्ट सिद्धि, तेजल, साक्षी? आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। But there are few situations where it doesn't go the way we are looking at things. Yes, there are few exceptions. What are those exceptions? Let's look at them parallelly. You know, there are few molecules जो दोस्तों के जैसे होते हैं, रंग बदल लेते हैं। गिरगिट, गिरगिट, हाँ उसके जैसा है, ठीक है, उसको व्हाट्सएप तुझे बोला था मैंने। There are few molecules which have got some specific lone pair of electrons, correct? Again, under some specific radiation being applied onto, they might work out differently. Have you heard about something known as coordinate bond? पढ़ा होगा ना कॉलेज में, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो एटम खुद के इलेक्ट्रॉन्स खुद देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो, जो आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं होता है। एम आई करेक्ट? तो कहना है जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है, इट इज समथिंग डिफरेंट। एक डाउट पूछूं? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, एक डाउट पूछ रहा हूँ, मुझे भी वो क्वेश्चन अभी ऑन द स्पॉट दिमाग में आया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स? ढूंढ के आना, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ना ही उसमें शेयरिंग होती है, ना ही दोनों से एक भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सब कुछ एक ही तो देता है, वो खुद देता है, वो सब कुछ खुद का देता है। तो वो सिग्मा या पाई में क्लासिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एनीवेज, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो लेट्स से अगर अपने मॉलिक्यूल में कहीं पे जो भी अपना ड्रग है, जो हमने ये वायल में डाला है, अगर उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीच में ही बन गया, पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं था, बट अगर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया अंदर, तो डोंट यू थिंक वी माइट गेट अ टोटली डिफरेंट एब्जॉर्बेंस? यस और नो? हो सकता है जब भी मैंने, सपोज मैंने एक ड्रग लिया और मैंने उसको एसीटोन में डाला, हाँ वही नेल पेंट रिमूवर, अरे तूने गिफ्ट किया था ना उसको, दीदी को एसीटोन और ड्रग एक दूसरे के साथ एक सोल्यूशन में पड़े हैं, तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ एक सोल्यूशन में पड़े, व्हाट इफ दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टुगेदर? डोंट यू थिंक योर एब्जॉर्बेंस विल बी डिफरेंट? आपको लगेगा ड्रग ने एब्जॉर्ब किया, बट एक्चुअली वो ड्रग और एसीटोन ने मिलके कोई नया कंपाउंड बना दिया है, ड्यू टू विच इट हैज स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस? ब्रेड देखा है? ब्रेड, ब्रेड को अभी बारिश में ऐसा खुला रख दे, 3 दिन बाद उसके ऊपर अपने आप चटनी आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? आता है ना? वो चटनी कहाँ से आया? फंगस इतने दिन घूम रहा था क्या? फंगस आ गया, चिपक गया, फंगस ने कॉम्प्लेक्स बना दिया, राइट? दैट्स व्हाट यूजुअली हैपेंस। यू माइट फील दैट एक ही कंपाउंड, एक ही ड्रग ने सब कुछ एब्जॉर्ब किया, बट दैट्स नॉट द केस। एब्जॉर्बेंस हुआ है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कहना ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो मेरा जो भी कंपाउंड अंडर एनालिसिस होगा, दैट माइट शो मी अ टोटली डिफरेंट एब्जॉर्बेंस। आई होप पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर टिल हियर। कैन वी गो टू नेक्स्ट? कैन वी गो टू नेक्स्ट? हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोमेरिज्म? प्रीतिश सर ने बताया होगा, सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा, रेजोनेंस, टोटोमेरिज्म, ये सारी चीजें हमने सुनी होगी, राइट? So when you talk about resonance and tautomerism, can I say the electrons keep shifting? Resonance, tautomerism, फिर इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स आ जाते हैं। एंड whenever electrons will keep jumping, can I say our absorbance will keep changing? क्योंकि UV spectroscopy is all about electrons, right? That's the reason you also call UV spectroscopy as electronic spectroscopy. तो अगर मैं बेसिक डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, अगर मेरा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी हुआ तो भी मेरा कंपाउंड दो अलग एब्जॉर्बेंस दिखाएगा। आई होप एवरीवन अग्रीज विद दिस। आई होप एवरीवन अग्रीज विद दिस। क्लियर टू लियो? ऑन सेम ग्राउंड्स आपने देखा होगा बहुत सारे कंपाउंड अंधेरे में चमकते हैं, अंधेरे में चमकते हैं, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस आई मीन टू से। तो बेसिकली व्हेनेवर यू हैव, गुड वन महिमा, व्हेनेवर यू हैव फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस कंटिन्यूस रहता है कि टाइमिंग के लिए दिखता है, देन इट लूजेस, देन अगेन इट अपीयर्स एंड देन अगेन इट लूजेस? टाइम बिंग के लिए रहता है कि हमेशा रहता है फ्लोरोसेंस? अरे देखा होगा ना, अंधेरे में चमकता है, फिर लाइट चालू कर दो तो गायब हो जाता है। तो कहना इसे उसमें कुछ सिचुएशंस चेंज ओवर हो रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड देन दे आर कमिंग बैक टू वन प्लेस। दैट्स द रीजन वो टाइम बिंग के लिए ही होता है। सो व्हेनेवर
it's being in for timing in case of fluorescence compound. Obviously whenever the molecule is under fluorescence, कहने से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. आदमी चमकता कब है अंधेरे में? जब मेहनत ज्यादा करता है, जब उसमें एनर्जी ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी, कम बैक टू आवर चैप्टर. जब भी वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू शो फ्लोरेसेंस, इट्स गोइंग टू शाइन. दैट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ इट. And moment it will going to lose energy, it will go back in the dark where it was. On same grounds happens with our molecules as well. Let's say मैंने 100 ml में 1 mg ड्रग डाला, ठीक है. मैंने 100 ml में 1 milligram ड्रग डाला. And let's say I have another situation where in 100 ml I have added 1 10 raised to 10. समझा ना कितना बड़ा हो जाएगा नंबर? 10 raised to 10 kg, मिलीग्राम भी नहीं, kg. आपने एक जगह पे 100 ml में सिर्फ 1 mg डाला और दूसरी जगह पे 100 ml में आपने 10 रेस टू 10 kg डाला. कहना है से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया. कहना है से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया. मैं आपको और एक एग्जांपल से इसको डाइवर्ट करूँ. ये दोनों में से एक बात बताओ, एब्जॉर्बेंस कौन ज्यादा करेगा? ये दोनों में एब्जॉर्बेंस कौन ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली द वन व्हिच इज मोर इन कॉन्सेंट्रेशन, धर्मेश, इज गोइंग टू एब्जॉर्ब मोर. डोंट आस्क मी फुलिश क्वेश्चंस, राइट? Now consider another situation where I have got two cuvettes. Out of that two cuvettes, one of the cuvettes is of this size. Okay, एक्चुअली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टैंडर्ड साइज ही होता है, तो ये थोड़ा जोकी वाला क्वेश्चन बन रहा है. ये प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज. तो एक ये बड़ा का वेट है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, आई एम सेइंग, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस. और एक एकदम छोटा सा कवेट है. दोनों के अंदर मैंने सेम अमाउंट ऑफ ड्रग फिल किया है, 1 kg 1 kg. वेयर डू यू थिंक एब्जॉर्बेंस माइट जस्ट डिफर? दोनों में सेम अमाउंट ऑफ ड्रग है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों में 1-1 लीटर पानी के अंदर मैंने 1-1 किलो ड्रग डाला. वेयर डू यू थिंक एब्जॉर्बेंस विल डिफर? पहला क्वेश्चन ये आता है, विल द एब्जॉर्बेंस डिफर? पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ दे विल डिफर देन व्हाई? दोनों में कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, 1 किलो ही डाला है, 100 ml में ही डाला है, तो क्यों डिफर हो रहा है? कहना इसे एक के पास ज्यादा एरिया डांस करने के लिए, उसका शायद थिकनेस ज्यादा है, दिख रहा है, इसका थिकनेस ज्यादा है, सो इट विल स्प्रेड अक्रॉस. इट्स नॉट गोइंग टू कम टुगेदर. यहाँ पे थिकनेस कम है, पूरा खिचड़ी बन जाएगा. हाँ, आई कम टू दैट अंश. पूरा खिचड़ी बन जाएगा. जब खिचड़ी बन जाएगा वहां पे ट्रांसमिटेंस इजीली होगा क्या? मुंबई लोकल याद करो, आदमी के अंदर घुसने की जगह होती है क्या? नो, देयर इज टोटल खिचड़ी. यू कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट्स हाउ हाईली इट इज ऑक्यूपाइड. सेम वे अगर एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो क्या मेरा इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिट होकर दूसरे बाजू आ पाएगा क्या? क्या मेरा इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिट होकर दूसरे बाजू आ पाएगा क्या? क्लियर? नो, राइट? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर. हाँ, तो हमने 4 सिचुएशंस देखे. एक, जब भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल हो, कीटो, इनॉल, टोटोमेरिज्म एंड ऑल दोस पॉइंट. दूसरा, जब सल्यूट और सॉल्वेंट साथ में आके कॉम्प्लेक्स बना देते. तीसरा, जब फ्लोरोसेंट कंपाउंड हो, जो कभी चमकेगा जुगनू के जैसा और फिर गायब हो जाएगा. चौथा, concentrated solution where the khichdi is too much they all are packed together. Coming to last one, suspension. How many of us remember our 9th and standard Brownian motion? सुना है Brownian motion? वहां पे टिंडाल इफेक्ट भी पढ़ा था. अगेन 11th 12th में भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट 9th में तो था. हम सब स्कूल सेम स्कूल में तो नहीं थे, बट ठीक है, राउंड अबाउट बोर्ड्स तो सेम ही थे. zigzag मोमेंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देन योर Brownian मोशन, ये सब एक ही चीज के नाम है. तो बेसिकली जब भी सस्पेंशन होता है और सोल्यूशन होता है, लेट्स से मैंने 1 किलो ड्रग लिया, 100 ml पानी में डाला. मैंने उसको जब 100 ml पानी में डाला तो वो सोल्यूबलाइज हो गया और यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन है. और मैंने वो सेम 1 किलो ड्रग पानी के बदले एसीटोन में डाला. उसके लिए लाया था बट अब उसको नहीं चाहिए तो एसीटोन में डाल दिया. वहां पे वो सोल्यूबलाइज नहीं हुआ, सपोज जस्ट एग्जाम्पल, इफ एट ऑल वो सोल्यूबलाइज नहीं हुआ, तो वहां पे सस्पेंशन फॉर्म में. एक सस्पेंशन है, एक सोल्यूशन है, कहाँ से ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगा? फ्रॉम वेयर द वेव्स कैन ट्रांसमिट इजीली? ऑब्वियसली सोल्यूशन. सोल्यूशन में पूरा का पूरा ड्रग सोल्यूबलाइज हो गया है तो यहाँ से वहां तड़ी पार हो जाएगा. सस्पेंशन में व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन? सस्पेंशन मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे फैले हुए रहते, राइट, लिक्विड के अंदर. दैट इज बेसिकली
powdery materials or solid particles being suspended in some liquid. जब ऐसे कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, कैन आई से द लाइट विच विल गेट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट पार्टिकल, वो हिट करेगा उसको और किधर, फिर वो दूसरा पार्टिकल उसको किधर और हिट करेगा, फिर वो तीसरा पार्टिकल उसको और किधर हिट करेगा, ऐसे सब एक दूसरे के साथ हिटिंग 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 खेलते रहेंगे, राइट? And in this entire process where the same light will be heating each other one or the other time, in that particular case can I say ज्यादा absorbance हुआ नहीं है, but due to multiple scattering the transmitted light is going to be less. Am I correct? वो बेचारा एक दूसरे के साथ ही इतना खेल के थक गया कि वो बाय द टाइम इट मूव्ड आउट द ट्रांसमिटेड रेडिएशन वाज लेस. दैट्स द रीजन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नॉट वन ऑफ द हाईली रिलायबल टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग कॉन्सेंट्रेशन. नॉट आप सेम सोल्यूशन लो, आप उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कॉन्सेंट्रेशन निकालो और आप उसका क्रोमेटोग्राफी से कॉन्सेंट्रेशन निकालो, not every time for every compound you will get the same result. You will identify some sort of differences. याद रखना, मास्टर्स के टाइम अगर ट्राई करना हो, सेम टैबलेट लेना, उसका एनालिसिस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से करना और उसका क्रोमेटोग्राफी से करना. वेरी लेस चांस दैट यू विल ऑलवेज गेट सेम रिजल्ट. आइडियली यू शुड, but depending upon drug to drug, solvent to solvent, the way you have solubilized a lot of parameters, you might just get two different results. Simple reason being दोनों के principle अलग है, दोनों techniques अलग है, तो obviously not necessary that both of them will give us the same result. Clear till you? Clear till you? Yes or no? बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया क्या? फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं है, कीटो एनोल टोटोमेरिज्म ये सब टोटोमेरिज्म आया, तो व्हाटएवर वेरिएशन वुड बी देयर, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट सेम वेरिएशंस. कैन आई गो टू नेक्स्ट? यस, मजा आवे છે? चलो, बिफोर वी क्लोज ऑफ, आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग. ये सब लोग आपस में गरबा खेल रहे हैं, अभी आएगा ना? अभी अगस्त के बाद सितंबर में आता है, कभी आता है? नहीं, बहुत टाइम है, बाद में खेलेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स देख रहे हैं. वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वी आर अवेयर अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स. दिस एन इज नथिंग बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पता है ना लोन पेयर? लोन पेयर किस किस के पास होता है? लोन पेयर, लोन पेयर, पेयर मतलब वन, नो पेयर मतलब टू. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, करेक्ट? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, सल्फर के पास है. देन यू हैव पाई स्टार एंड देन यू हैव सिग्मा स्टार. A star is basically not star. This means bonding and anti-bonding, non-bonding. क्या बोलते हैं 11 12 में हम लोग को वैलेंस रिपल्शन थियरी था, याद है? VSEPR. देयर इज समथिंग नोन एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे आता है सिग्मा और पाई में. देन देयर इज समथिंग नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये n वाला. क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी सिग्मा बॉन्ड में आता है, पाई बॉन्ड में आता है? नहीं आता है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एंटर्स ओनली इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसके लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग भी बोला जाता है. ओके, एंड देन यू हैव अंश विच पार्ट टू बी रिपीटेड, एंड देन यू हैव एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे कुछ भी गया तो सब टूटने के काम होते हैं, ज्यादा बनने के टाइम काम नहीं होते. क्लियर है ना? तो बॉन्डिंग, जहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. दिस वन नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, एन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब याद रहेगा, आई डोंट थिंक वी विल मिस इट एनी डे. कैन यू गो फर्दर पब्लिक? अब ना हम लोग ज्यादा डेप्थ में या कोई चीज पकड़ के नहीं चल रहे, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स सो दैट टुमारो इट इज इजी फॉर अस टू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. एक बेसिक चीज पूछता हूँ. लेट्स से दिस इज फ्लोर नंबर 1. हम लोग इसको स्टेयरकेस बना के करते हैं, सॉरी फ्लोर्स बना के. दिस इज फ्लोर नंबर 3, दिस इज फ्लोर नंबर 4, दिस इज फ्लोर नंबर 5. एक बात बताओ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार दिख रहा है ना? सिग्मा टू सिग्मा स्टार दिख रहा है, पाई टू पाई स्टार भी दिख रहा है. ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार भी है. ओके, एन टू सिग्मा स्टार भी है. आराम से, डोंट बी इन अ हरी. आई एम आस्किंग यू फ्यू स्टूपिड क्वेश्चंस व्हिच विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस, but important for you to know the concepts. Why don't I have over here pi to sigma star? Pi to sigma star क्यों नहीं बना है? Pi to sigma star क्यों नहीं बना है? Why? उसको अच्छा नहीं लगा इसके लिए उसने नहीं बनाया सर. उसको अच्छा लगता तो बनाता था. नहीं सर, उसने इनवाइट नहीं किया रहेगा सर, उसका झगड़ा हो गया था सर, उसके वजह से ही उसका कटा था.
क्यों नहीं बना? पाई टू सिग्मा स्टार क्यों नहीं आया? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? नो। क्या डायग्राम है तो भी तुमको समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, रिक्वायर्स मोर एनर्जी, दैट्स द एक्चुअल ऑप्टिमम आंसर। मैं क्वेश्चन को और मॉडिफाई करता हूँ, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी क्यों नहीं आता है कि वो सिग्मा स्टार के पास जाए? वेरी राइटली ऑब्जर्व। गौरी से सिग्मा टू पाई स्टार भी नहीं है। जैसे पाई का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार के पास नहीं है, वैसे ही सिग्मा का इलेक्ट्रॉन भी पाई स्टार के पास नहीं है। पाई स्टार तो उससे कम एनर्जी पे है, तो सिग्मा टू पाई स्टार भी होना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं है फिर? वो क्यों नहीं है? बोलो बोलो। बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? बोलो। ठीक है, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द आंसर। रैशनल बताओ, व्हाई इट इज अनस्टेबल? ऑन पॉइंट गौरी। अगर आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी याद है, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज दिस वे। हम लोग करेंगे बहुत जल्दी होमो लूमो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, तब ज्यादा डिटेल में आइडिया आएगा। रिमेंबर, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स कभी पाई में नहीं जा सकते, पॉइंट नंबर वन। और कभी पाई के इलेक्ट्रॉन सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे के बॉन्डिंग में एक बार खेल सकते हैं। पाई बॉन्ड टूट के एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकता है, बट पाई बॉन्ड कभी भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं जा सकता ऑफ सिग्मा। पाई को पाई स्टार में ही जाना पड़ेगा, पाई सिग्मा स्टार में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका शेप ऑर्बिटल का टोटली अलग है। वो बात अलग है, 11th 12th में मेरे को भी नहीं समझा था। वो जब बीफार्म में आया ना, तब भी सोच रहा था यार ऐसा कैसा हो रहा है। तभी भी नहीं समझा था, बट जब पढ़ाना था तब सोचा था यार ऐसा कैसा हो रहा है, तब भी समझा कि ऐसा हो रहा है। क्लियर टिल? लेट्स गो टू व्हाट कुड बी अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर्स एक्सपेक्टेड इन एंट्रेंस। तो मैं बोलता हूँ, मेरे को यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन दिख रहे हैं। एक है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताना, ठीक है? दूसरा है पाई टू पाई स्टार, पाई स्टार नहीं बोला रे, पाई स्टार, पाई स्टार, पाई स्टार तुमने उसको कल देना है। फिर तीसरा है एन टू सिग्मा स्टार, चौथा है एन टू पाई स्टार। ये चार ही ट्रांजिशन है ना, चार ही लाइन दिख रहे हैं ना? मेरे को एक बात बताओ, ये चार ट्रांजिशन में विच ट्रांजिशन विल रिक्वायर मोर एनर्जी? ज्यादा ताकत किसको लगेगा? जिसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाना है, वेरी ऑब्वियसली दैट विल रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी। वेरी बेसिक थिंग, नो रॉकेट साइंस इन दैट, राइट? कैसा नॉनसेंस सवाल पूछ रहे हो, ये तो मेरे को आता है। वेरी ऑब्वियसली सिग्मा टू सिग्मा स्टार विल रिक्वायर मोर एनर्जी। किसको कब से, किसको सबसे कम एनर्जी लगेगा? सबसे कम एनर्जी, लीस्ट एनर्जी, लीस्ट। जहां पे सबसे नजदीक हो गए वहां पे सबसे कम एनर्जी लगेगा। एन टू पाई स्टार में सबसे नजदीक है, तो आइडियली आइडियली उसको सबसे कम एनर्जी लगना चाहिए। एन टू सिग्मा स्टार इज स्टिल फार ना, बट एन टू पाई स्टार इज स्टिल क्लोज। एम आई करेक्ट? आई होप वी आर एबल टू ऑब्जर्व इट। नाउ लेट्स जस्ट चेंज ओवर द क्वेश्चंस, ठीक है? I've been said that there are two wavelengths available with me, and I've been asked out of these two waves, which wave has the potential to do the transition of sigma to sigma star. मेरे को दो वेवलेंथ दिए और मुझे पूछा है कि ये वेवलेंथ में से कौन सा वेवलेंथ सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन कर सकता है। एक वेवलेंथ का वैल्यू है 172 नैनोमीटर्स और दूसरे वेवलेंथ का वैल्यू है 492 नैनोमीटर्स। ये दोनों में से कौन सा वेवलेंथ इजीली सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन कर सकता है, ऐसा मुझे पूछा गया है। एवरीवन सेज 172। समीक्षा, ये सब लोग 172 क्यों बोल रहे हैं शादी का? आई डोंट नो, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा ये लोग? इनको ऐसा क्या दिख गया है जो हमको नहीं दिख रहा है? चीटिंग करते हैं ना ये लोग। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, कभी भी कोई भी कैसे भी बताता है। Besides, you want me to repeat the question? You want me to repeat the question? I said that I've been given two wavelengths. One wavelength is 172 and another wavelength is 492. और मुझे पूछा ये दोनों वेवलेंथ में से कौन सा वेवलेंथ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इजीली करेगा? Which among these two wavelengths will do sigma to sigma star transition easily? That's the question. We all know, जहाँ पे वेवलेंथ कम होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन है ना। तो ये दोनों वेवलेंथ में से इसका वेवलेंथ कम है, मतलब लैम्बडा टू का एनर्जी ज्यादा होगा। एंड सिंस आई हैव टू मेक द बिगेस्ट जंप, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन सबसे बड़ा है, राइट? सिंस आई हैव टू मेक द बिगेस्ट जंप, कैन आई से energy 2 which is of wavelength 2
will have the possibility of doing sigma to sigma star transition. उसके बिना sigma to sigma star transition नहीं होगा. Can I say that? Clear till here? Can you proceed further? Sure. Can we go further? Yes. चले boss. Can we have one or two more questions? I know थोड़ा खाने का टाइम हो गया. Last question. Last question. मैं आपको दो मॉलिक्यूल का नाम दे रहा हूँ. मुझे बता दो कौन सा मॉलिक्यूल का नाम क्या है और वो कौन सा ट्रांजिशन बताएगा. एक आपने जो गिफ्ट किया था एसीटोन और दूसरा मीथेन. इसमें से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन सा बताएगा और इसमें सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन बताएगा और इसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कौन बताएगा. मतलब ये और ये तीन ट्रांजिशन कौन से मॉलिक्यूल्स बताएंगे. दैट्स माय क्वेश्चन. ए कौन सा ट्रांजिशन बताएगा और बी कौन सा ट्रांजिशन बताएगा. दैट इज द क्वेश्चन. एन टू पाई स्टार एसीटोन सिग्मा टू सिग्मा स्टार वो बताएगा जिसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा. सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है. तो कैन आई से सिग्मा टू सिग्मा स्टार दोनों बताएंगे. कैन आई से दैट ये दोनों भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार बताएंगे. आई होप एवरीवन अग्रीज. पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन वही बताएगा जिसके पास पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट. पाई इलेक्ट्रॉन तभी आता है जब डबल बॉन्ड होता है. क्या पाई इलेक्ट्रॉन है. क्या इसमें कॉन्जुगेशन है. सिंगल डबल सिंगल है. मतलब ये यूवी एक्टिव है. तो यस कैन आई से दिस विल गिव मी अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. यस. एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन वही बताता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के पास होते हैं. इसके पास ऑक्सीजन है विच मीन्स दैट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर इसके पास ऑक्सीजन है अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैन आई से दिस विल गिव मी अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. क्लियर टिल यू. डन 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 डन. तुम लोग यार बड़े स्मार्ट हो गए यार. क्या खा क्या लिया. read through everything what you have written in book. We'll have a quick Q&A and then you can go ahead. Yes ये important है. वो लोग एग्जाम्पल दे देंगे बोलेंगे इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बताता है वो बताओ. Were you are there in lecture tomorrow offline? No. Just मेरे को WhatsApp करके रखो ना. I'll revert to you. How we can say it as conjugation because double bond is present between C and O. Ultimately, ma'am, it's a branch compound, so we take it into account as conjugated compound again. What about N to pi star? अरे N to pi star ये जाएगा ना अपना एसीटोन का ऑक्सीजन लेके. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना. एसीटोन कैन शो ऑल द थ्री व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट. वही तो करना है दर्शना. सेकंड पेज लेफ्ट हैंड साइड कॉलम लास्ट 5 लाइंस above the diagram. Can I start with questions? Can we shoot? Are we ready? कल ऑनलाइन लेक्चर्स इवनिंग में होंगे. We'll have ANS and probably post ANS we might continue with UV. We might. So I'll keep you posted. Or else weekdays going further. Can I shoot? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shoot. चैट बॉक्स में आ जाओ. एक बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ना. एक बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन. ओके 2 इलेक्ट्रॉन. अगर यूवी एक्टिव होना है कंपाउंड तो उसमें कॉन्जुगेशन नेसेसरी नहीं है. उसके पास सिर्फ डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए. कॉन्जुगेशन नहीं रहा तो भी चलेगा. कि कॉन्जुगेशन चाहिए. कॉन्जुगेशन इज मस्ट राइट. इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बी यूवी एक्टिव इवन अल्कीन्स कैन वर्क ना. अगर बोला इथीन है तो इथीन विल बी यूवी एक्टिव. हाँ ना. इथीन विल बी यूवी एक्टिव. नो वी नीड कॉन्जुगेशन राइट. तो अगर मैं बोलूँ पेंट 1, 3, 5 ट्राइन विल इट बी यूवी एक्टिव.
spent 1,3,5 trying, will that be UV active? Yes. अगर मैं बोलूँ कि frequency is directly proportional to wavelength, is that true? Frequency और wavelength क्या directly proportional है? अरे कौन yes बोला रे? Frequency and wavelength are inversely proportional. Energy and frequency are directly proportional, right? Energy and frequency are directly proportional. Energy and frequency directly बोला. Energy and wavelength inverse. Energy and wavelength inverse. Energy and wave number direct. Energy and wave number direct. क्या ये बंदा आज एक भी गलत आंसर नहीं दे रहा, सब डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहा है. एनर्जी एंड वेव नंबर डायरेक्ट. ठीक है, ऑल डन फॉर टुडे. स्टार्ट रीडिंग सुप्रिया महाजन, फिनिश इट फ्रॉम दैट साइड. विल कंटिन्यू प्रोबेबली टुमारो और मंडे और ट्यूसडे. मीनवाइल एएनएस पैरेलली खत्म करो. आई होप स्टेनिंग एंड स्टरिलाइजेशन वाज गुड. लाइब्रेरी आई डाउट, जस्ट चेक वेदर इट हैज, प्रोबेबली होगा, सिर्फ यूवी का होगा आई सपोज. इंडियन ऑथर है तो सॉफ्ट कॉपी मिलता नहीं है. ऑफलाइन थाने 10 to 12 tomorrow, दादर 2:30 to 4:30 है ऑलरेडी. एक बार चेक करो वापस. इट इज इन सम कॉम्बिनेशन पेपर आई सपोज. स्टेनिंग एंड स्टरिलाइजेशन ही साथ में. जस्ट चेक इट वंस अगेन. हाँ, एनडीडीएस के साथ है, सॉरी. एनीवेज, any other queries, lectures, staining, sterilization and all is going good I suppose. मैं एक बार चेक करता हूँ बेसा का, अवेलेबल आई अपलोड इट. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कल नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा. है आई सपोज अपलोडेड ऑलरेडी. अश्विनी, जस्ट चेक वंस. इफ यू डोंट गेट इट लेट मी नो. डंडन डन. यस, चलो ठीक है, बाय.